अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज के शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की पंचायत में होने वाली खट्टी मीठी गुफ्तगू से। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब पंचायतां ते लफ्ज़ ही कर छड्डो। ये पंचायतां लाण वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾ ਕਰੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋ ਆਹੋ ਬਕਾਸ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋ ਆਹੋ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਕਾਸ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तशरीफ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ सुनो साडी। देखें चौधरी साहब, जो मर्जी आप कहें, गांव में होने वाली हर बात, हर तनाज़ा, हर झगड़ा जो है उसका बेहतरीन फोरम जो है वो आज भी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद यही पंचायत है और यही चौधरी साहब है। जीवनदार है। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬੂਰੇ ਤਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ऐसा नहीं, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਏ। ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋ ਆਹੋ ਮਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਣਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਚਵਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਟੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੜਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉੱਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਐਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਭੱਜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਨਾ ਕੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀ ਤਰਨ ਡਈ, ਸਾਰਾ ਰਾਣਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਏ ਰਾਣੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ। ਰਾਣੇ ਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਘੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਜੀ ਚਾਚਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਣ ਕੀ ਗਈਆਂ, ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਜੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 52 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚਮਕਣ ਡਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿਆ। आप अल्लाह का शुक्र करें कि आपने राणा साहब का चेहरा उस वक्त देखा जब वो पानी में थे। जब छत गिरी है इनके मुंह पे मिट्टी थी ना, उस वक्त आप राणे का चेहरा देख लेते ना। जुनैद साहब अल्लाह ने चेहरा ते रख लिया, अल्लाह का शुक्र है चेहरा बच गया है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नहीं नहीं, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो सेकते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ ਲੇਟ, ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਖੜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਚੇ ਚੋਂ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਇਹ हेलमेट जो मुंह गड्ढे वाले निकला है बाहर। सांचे में से आप क्या चीज निकाल रहे हो, हेलमेट में से क्या निकाल रहे हो, खुद सोचे आप। वो पुत्र खोए मलाई वाला ही देखे एडे प्यारे राणा साहब, मैं तुहानू की दसा मेरा दिल अथरुआं नाल रोन। मोटरसाइकिल मेरी पुरानी है, आना है जी जिवें नवीं है। बड़ा रब जानदा मेरे दिल नू हौल फिरे, मैं अल्लाह ने मेरा मुंडा रख लिया। मैं गुजारिश ये करनी चाहना कि आए दिन सियापे पैंदे ने सानू ते सड़कां उच्चियां कर करके ते लोकां दे मस्कीनां दे घर जेड़े ने वो नीवें कर छड्डदे ने।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ नहीं ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ बड़ी बुरी हालत है जुनैद साहब खुदा का वास्ता जो आवाज चुको देखिए इससे पहले कि मैं आवाज उठाऊं आप किसी फोरम पे ये चौधरी साहब से कहे ना चौधरी साहब आपकी आवाज चौधरी साहब ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਲਣ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਨ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਹਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਤਰਨ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੌਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਨ ਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੌਲੀ 'ਚ 2-3 ਲਸੂੜੇ ਵੀ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਰ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਤੇ ਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਸੂੜਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਲਸੂੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਵਾਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ नहीं वास्ते लोगों जो होती है बारिशें च तुहानू की दसी मेरी बात सुने ये बात प्रॉपर फोरम पे सिर्फ आपके चॉइस साहब कर सकते हैं दोनों बातें साबित करने के लिए एक तो ये कि गांव में जानवर नहीं बसते इंसान बसते हैं क्योंकि जो सब खुद एक खूबसूरत इंसान लगते चढ़ दियो चौधरी साहब नू चौधरी वेख लो जो ताज वाली गो हुंदी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਉਂਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਹਾਰੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੜਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वो चवले जाइए गांव से आते हैं यहाँ पे अपनी गुजारिश करने के लिए यहाँ आके इकट्ठे होके तो बात करें और जनाब साहब से आपस ही लड़ने लग पड़ते हैं अकल की बात किया करो जनाब साहब ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ चौधरी पुत्र की बदलना है किस तरह बदलना है इन्होंने करना जो साडा करना है चौधरी साहब में तो जितना जोर है वो सारा दिन हुक्का छिकने पे वो जोर लगा देते हैं किसी दिन हुक्के ने चौधरी छिक लिया ना तो आपको सीख मार के चौधरी निकालना पड़ेगा नाली में से निकालना पड़ेगा की कई बारी कढ़िया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ 4 ਸੂਟੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਾਰਨ ਡਿਆਂ ਦਾ ਘੁੱਟੋ ਬਈ बारह जो साहब जो मर्जी कहे मैंने इतना बारोब और पर्सनालिटी वाला मुदब्बर तदब्बर वाला चौधरी किसी गांव का नहीं देखा जितना आपको ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਏਡਾ ਜਿੱਦੀ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆਹੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚਿਮਟਾ ਲਟਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਛੋਖੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਆਹੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਧਨੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੀਡੀਆ ਕੌਣ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋ वो ऊपर हमारी कोई गुजारिश पढ़वाए ताकि को सुने हमारी गांव की हालत बदले। जुनैद साहब आपको एक बात बताऊं
रब जानता है, अगर आप किसी दिन गेड़ा लगाए ना गांव का, आपको ये महसूस होगा कि जानवरों में और बंदों में कोई फर्क नहीं होता। देखिए, आप अपने गांव का एक केस बनाएं, थ्रू प्रॉपर चैनल चौधरी साहब के जरिए मूव करें। अब आपके दामाद के साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया, आप शोर मचाने लगे। ऐसा जुनैद साहब एक दफा हमारे गांव का मुआयना तो करने आए, हम आप पानी त्रांग देंगे, कट्टा नहीं उड़ेगा, आप पे नहीं पड़ेगा कट्टा। मैं कट्टा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, उस वक्त से आपको भी तो बर्दाश्त कर रहा हूं ना। आपका मसला हल होना चाहिए। जुनैद साहब, ये आपको गेड़ा लगाना पड़ेगा हमारे गांव में। चौरी ने साडा कुछ नहीं जो करना, ये तो नवाब लोग ने, चौरी बंदे ने, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਪੜੀ ਚੋਂ ਬੱਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। मेरी बात सुने, देखिए अब सड़क ऊंची हो गई, सड़क तो नीचे नहीं की जा सकती ना दोबारा, या घर भी ऊंचे नहीं किए जा सकते सारे। अब जाहिर है कि कुछ सीवरेज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर जो साहब हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती तो आप आपस में कोई तावन करके थोड़े बहुत पैसे डाल के फिर किसी से बात करे तो कोई इंतजाम आर्जी तौर पे साहब टुक्कर खान जो कि लोगों को पैसे कोई नहीं, तो केड़े पैसे इकट्ठे कर ले भी कोई गल करो करना नहीं रखदा ना, या तुसी ते हो सेठ आदमी। माशाल्लाह चौधरी साहब साहिब सरवत इंसान है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे ज्यादा। कट्टा दे सुहा नास वजिया पे आ। चौधरी साहब दी जिन्नी फसल सारे एक गेड़ा नहीं ट्राली लैके आई शहर वाल नूं, इत्थे आंदे ने करोंडे फैले ने, ओदे उत्थे ही बेचारे आप एडे मस्कीन होए ने। इन्हां दे ते डेरे तो कोई निम दे पत्तर लाण आवे ते ओदे कोल पैसे मंग लैंदे ने। जुनैद साहब देखो की जुल्म है, की नेर मचिया। नवी सिरकी दी छत पवाई है राणा साहब दी, 56 दा पक्खा हार ही थल्ले। चाचा वैसे तू मेरा चाचा भी है तो मेरा प्यो भी है, गलती तेरे को भी हुई चाचा थोड़ी। की होया पुत्र? जे असी छत कानिया दी सिरकी पाई सी तो 56 दा पक्का नहीं बनदा। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੜ ਨਿੱਕੀ ਭੰਬੀਰੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਆਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਲੰਮਿਆਂ ਉੱਥੇ 56 ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। चलो फिर डिगन दे छत्ता राणे दी इज्जत नहीं ना करनी चाहिए। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता है ना वो जमीन जायदाद या कारोबार पे नहीं होता, जो मुश्तरका खानदानी घर होता है ना सारों का, उसकी तकसीम पे होते हैं सबसे ज्यादा झगड़े। आबाई घर की तकसीम पे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। अच्छा भाईजान, अगले रोज हमारे दोस्त हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं हफीजुर रहमान चौधरी साहब, वो मुझे बता रहे थे, बल्कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपका इतना तजर्बा है तो जरा बताएं कि ये जो हमारे खानदानी झगड़े अदालतों तक पहुंचते हैं, खास तौर पे ये जो मरूसी जायदाद की तकसीम होती है, इनमें किस नौइयत के मुकदमात जो है सबसे ज्यादा होते हैं? तो कहने लगे सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता है ना वो जमीन जायदाद या कारोबार पे नहीं होता, जो मुश्तरका खानदानी घर होता है ना सारों का, उसकी तकसीम पे होते हैं सबसे ज्यादा झगड़े। आबाई घर की तकसीम पे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। अब कभी आप सोचें कि इसके मुख्तलिफ अवामिल हैं इसमें, सीधी बात है कि कोई एक बंदे को कसूरवार ठहराना ये मुनासिब नहीं होगा इसमें। और दूसरी बात ये है कि अगर होते कब है झगड़े? होते उस वक्त हैं जब घर में ज्यादातर, जब घर में या तो वो बंदा जो बिल्कुल वेला है, जो फारिग है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, वो घर की तकसीम पे नजर लगा के बैठा होता है कि जनाब मैंने ये घर बेचना है और अपना गुजारा करना है, या जो इसका बिल्कुल उलट है जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है या वाहिद कफील है, वो सोच रहा होता है और उसकी बीवी भी उसको मुसलसल इमदाद फराहम कर रही होती है उसके कानों में कि ये तुम हमारी कमाई पे बाकी सारे ऐश कर रहे हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, अलग होना उसका हक है, हो सकता है अलग, कोई खानदानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम जो है ना तो ये कोई कंपल्शन है ना ये कोई ज़रूरी है, अगर ठीक है अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो हो जाना चाहिए। ना दीन में इसकी कोई पाबंदी है, हमारी कोई इस्लाम में इस बात की पाबंदी नहीं है, बल्कि अलग ही रहने को प्रेफर किया गया। लेकिन हमारी ब्यूटी जो है, हमारी सोसाइटी की जो ब्यूटी है वो बहरहाल मुश्तरका खानदानी निज़ाम है। चलो वो नहीं है तो कम से कम आपस में जो प्यार मोहब्बत सलूक जो है वो तो है ना हमारी खानदानी। अब जब बड़ा जो कमाने वाला है वो अलग हो जाता है तो वो अलग होते ही ये फैसला करता है, ये फैसला सादर कर देता है कि जनाब आप इस घर को बेच दो, या एटलीस्ट अगर आप बेच नहीं सकते
तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब वो ये नहीं सोचता कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने कैसे दे दिया जाए। जो बीच में रह रहे हैं वो इतने जोगे हैं भी कि नहीं। Exactly. अब जाहिर है जो बंदा अलग होता है वो इस काबिल होता है कि उसने घर खरीद लिया होता है, फिर ही अलग होता है ना, तो उसको मेरा ख्याल है कि इतनी वसअत ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए अपने घर वालों के लिए जिसके साथ उसने उम्र गुजारी है। उसमें उसके माँ या बाप भी रहते होंगे, उसमें बहन भाई रहते होंगे, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप कुछ अरसे के लिए सही, कुछ अरसे के लिए सही, अगर मुस्तकिल नहीं आप दे सकते तो कुछ अरसे के लिए अपना ये जो जिस मौक़िफ़ पे आप इसरार कर रहे हैं कि जी बेच दिया जाए, कैसे बेच दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। और आपका एक अदद कमरा अंदर से निकाल के, मतलब ये कुछ तरबूज नहीं है जिसमें से आप एक टुकड़ा निकाल के तो साथ ले गोगे की मिसाल देती मिसाल देती। जुनैद साहब, इन चक्करों में ये मेरा भाई बड़ा सुखी रहा है। अच्छा। इन बहन भाइयों में लड़ाई जरा नहीं हुई जायदाद पे। अच्छा। इसने जिंदगी में जो कुछ कमाया अपने इलाज पे लगाया। यार वो हम सब में से सेहतमंद आदमी है। गौरिया में उसका ठठाना बनाया करो। अच्छी है। जो पतला आदमी होता है वो तो बड़ा मजेदार होता है, फुर्तीला होता है। हाँ, उसकी जिंदगी तो सबसे ज्यादा सेहतमंद होती है। वैसे कोई खाया पिया कर अच्छा, बड़ी अच्छी तुमने बात की है कि जो अलहदा होता है अगर वो किराए पे भी जाता है तो इसका मतलब है उसकी इतनी आमदन है। जो बाकी उधर रह रहे हैं वो अगर नहीं इतने जोगे कि वो अलग घर ले लें तो जो अलग हुआ है उसको हौसला रखना चाहिए कि उसका हिस्सा उधर ही पड़ा हुआ। सही। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो घर में सबसे ज्यादा कमा रहा होता है यही सबसे पहले क्यों अलग होता है? आप देखें ना, आम तौर पे वही सबसे पहले अलग होता है जो सबसे ज्यादा कमा रहा है। हालांकि उसे चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है, इनके साथ ही रहो। जो तुम पुट का गोश्त लेके आते हो रोज वो सारियों की हांडी में पड़ना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि पुट का गोश्त, वो कहता है कि पुट इतनी सी होती है, वेले घर में बैठ के खाने वाले इस तरह के 5-6 होते हैं। यार इतनी भी पुट नहीं होती। पुट तो मैंने इतनी इतनी देखी है जितनी 70 की गद्दी नहीं होती, जितनी इतनी इतनी लंबी मैंने बकरे की पुट देखी। अच्छा, इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि कई ऐसे बब्बर शेर भी हैं कि अपने बच्चे वो किरायों पे रुला रहे होते हैं, मगर वो अपने बहन भाई जो वेले बैठे होते हैं जाती मकान में, उनको नहीं कहते कि भाई ये बेच दियो मकान, मेरे बालों का हिस्सा दे दियो, हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं। नहीं। अच्छा, जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे उसका भी एक दूसरा पहलू है जिसका हम कह रहे थे कि बीवी उकसाती है या बंदे की आमदन इतनी हो जाती है जिस बेटे की तो वो अलग का सोचता है। उसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो दीगर फारिग रहने वाले बहन भाई हैं या जो अहले खाना है वो उसको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे तमाम तर अखराजात सारी उम्र के लिए इसी भाई ने पूरे करने हैं या इसी बंदे ने पूरे करने हैं। उनको भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको 2 हाथ दिए हुए हैं, वो काम काज करें और अगर वो बड़ा है तो उसका एहतराम भी करें। फिर वो जब घर चला रहा है उसको फिर रिस्पेक्ट भी दें फिर उतनी, वो मेहनत कर रहा है। मेरा ख्याल ये है कि कुछ बुजुर्ग भी ये गुस्ताखी माफ ज्यादती कर जाते हैं। वो भी हमें किसी एक बच्चे की मोहब्बत में अड़े होते हैं। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि ये बुजुर्गों का काम है कि घर की या जायदाद की तकसीम अपने हाथों से बड़े एहसन तरीके से करके अपनी जिंदगी में कर जाए। हाँ, अपनी जिंदगी में कर जाए ताकि बाद में बहन भाई आपस में डांग सोटा न करें। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ चौकीदार ऐसे भी हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि अगर चोरी डकैती की वारदात हुई है तो वो खोज जो है ना पहुंचते पहुंचते इन तक जरूर आई है कि वो इनसे मिले हुए होते हैं। वो पहाड़ी इलाके का चूई शदब खान पे चोरी का इल्जाम लगाती है। और यार तुम पे नहीं लगा रहे, उसने वजाहत की है कि कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं। हराम नहीं कहते हम, अल्लाह के फजल से मेहनत करके कहती है। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के कटहरे में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहल्ले के एक चौकीदार से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुलाकात का हमारे पास टाइम नहीं है, हमने वापस जाकर तो ड्यूटी करना होता है। मुलाकात से मेरी मुराद थी कि आपको कटहरे में खड़ा किया, आप पे जरा करनी है। मेरे साथ आप बेशक बात कर लो, मैं तो आपको सब बता दिया है। हम तो जिस मोहल्ले में भी काम करता है हमको शाहजी लेके आया था। अच्छा। तो शाहजी ने हमको कहा थी कि तुम इधर काम करोगे। वो कहते हैं शदाब खान, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा।
शाह जी ने हमको उधर फैक्ट्री में देखा काम करते हुए। फैक्ट्री में अल्लाह के फजल से आज तक जब से हम लगा हुआ है कभी एक फुट का चोरी नहीं हुआ। और हम अल्लाह के फजल से उधर का ड्यूटी देती थी तो शाह जी ने हमको देखा उधर। शाह जी ने कहा कि सुनो तुम ग्राउंड वाली मार्केट के साथ हमारा मोहल्ला है गली में, उधर चौकीदारा करेगी। मेरी बात सुनो, फैक्ट्री में जब तुम नौकरी करते थे तो दिन के वक्त काम करते जी थे, हाँ। लेकिन रात के वक्त जहां तुम ड्यूटी देते हो तुम पे सबसे बड़ा इतराज ये है कि रात के पिछले पैर सो जाते हो, किसी को पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अफसर लोग हो, आप बात को समझेगी। मैं जब उधर फैक्ट्री में होता था उधर मैं सारी रात भी ड्यूटी देती थी। और आपको ये बताता हूँ कि उधर मैं खुद उधर मुझे पीछे किचन भी मिला हुआ थी। अच्छा। वो उधर मैं चाय वाय भी खुद बना लेते थे। इधर मोहल्ले के अंदर सारी रात में बैठता हूँ, चाय भी मैं जाके बाहर को कैसे पी के आता हूँ। इधर मोहल्ले वाला तो सारा सोया होता है। इधर मैं जब से चौकीदारा करती हूँ उधर मुझे मिलता था 20,000 रुपया। तो इधर इन्होंने कहा कि हमारा 27 घर है गली का, तो हम तुमको 1,000 रुपया फी घर देगा, तो 27,000 तुम्हारा बनेगी। तो अभी जब इस गली में लगा है तो कोई बंदा को कहता है कि नहीं शादाब खान को नहीं पैसे देना, ये हमारे गली के हमारे दरवाजे के आगे क्यों नहीं बैठती है। वो कहते हमने भी नहीं देना, ये हमारे दरवाजे के आगे। एक शादाब खान 27 टुकड़े होके तो नहीं बैठ सकता नहीं। अब कई बंदा ये कह देती है कि हमारा अपने चौकीदार है, शादाब खान कौन है? शाह जी से बात करता है, शाह जी कह देता है हम उनसे बात करेंगे। अभी वो जो ये नीला दरवाजा वाली गेट वाले हैं वो कहते जी हम तो दुबई होती है, हम क्यों पैसे देगा, तुम दुबई होते तो तुम्हारे घर का हिफाजत उसमें सामान तो पड़ा हुआ। ओ ठीक है बाबा, ये तो तुम्हारा मौकफ है ना, लेकिन तुम यहाँ पे खड़े हो इस वजह से कि जो सवालात पब्लिक के जहन में है तुम लोगों के बारे में वो तुमसे पूछे जाए। तुम पर दूसरा बड़ा इतराज ये है कि आप लोग रात गए नौजवानों की महफिल सजा लेते हैं जी, और वहां पे यानी चक्कर लगाना जो आपका बुनियादी काम है वो नहीं करते। मेरा बात सुनो, शादाब खान अल्लाह के फजल से कभी नहीं बैठी। शाह जी का बेटा रात को देर से आती है, वो मेरे पास बैठ जाती तो बातें करती है। शाह जी हमको लेके आया हुआ, मगर हम जब भी उधर उसके बेटा के साथ भी बैठते हैं, बैठ के भी उधर तड़क के ऊपर बैठा हुआ भी हम सीटी का काम करता रहते। बस यही सीटी है जो तुम्हारी सुस्तियों और कुताहियों पे पर्दा डाले रखती है। बस सर इनकी यही तो क्वालिटी है, जहां बैठे हुए बस सीटी बजा देते, लोगों को ये पता शायद गुजर रहा है यहाँ से। तो सीटी को खड़े होके तो नहीं बजाती, वो तो बैठ के भी बजा लेती है। देखो अगर कोई चोर आती है मोहल्ले के अंदर, उसको पता चल जाए, सीटी का आवाज सुनता है, उसको पता चल जाती है कि शादाब खान जाग रहा है, फिर उधर कोई नहीं आती। ये जब पैसे की बारी आती है तो लेने वाला महीने का पैसा तो कहती है शादाब खान कौन है? शादाब खान वो है जिसने युवराज को आउट किया था। वो नहीं बाबा, मैं शादाब खान वल्द गुलाब खान। 100 कोस दूर इधर, 100 कोस दूर इधर, 100 कोस दूर उधर, 100 कोस दूर इधर, सबको पता है कौन है शादाब खान। शादाब खान जी अगर सबको पता तो फिर मोहल्ले से 2 गाड़ियां क्यों चोरी हुई हैं? वो जो 2 गाड़ियां चोरी हुई है पूछो शाह जी से। एक दिन मैं गया हूं, शाह जी ने मुझको भेजी है, उन्होंने मुझको भेजा डीजी खान, उनका माल का पैसा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटे के साथ जाओ शादाब खान। अच्छा। हमें लगाया हुआ है शाह जी ने उधर गली में, हम उनके बात का इनकार नहीं कर सकती है। हम उनके बेटे के साथ गया है डीजी खान, पीछे से एक गाड़ी चोरी हुई है, तो दूसरी जो है वो अभी चोरी हुई है। इन लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि ये मोहल्ले में 1 या 2 घरों के साथ अच्छी इनकी अलैक्स लैक होती है, उनकी ये इतनी खिदमत करते हैं, घर के काम भी कर देते हैं और बाकी घरों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात नहीं है, आप अफसर लोग हैं, हम आपको समझाते हैं। शाह जी मुझको लेके आई थी इधर। अच्छा। वो जिस गली में अभी मेरा ड्यूटी है उधर शाह जी मुझको लेके आई थी।
अभी किसी में मालिक में कोई भी बंदा पैसे नहीं देती है तो शाह जी सिर्फ बोलते हैं और कोई बंदा नहीं बोलती और है पैसे तो सारे मोहल्ले वाले तुम्हें देते हैं ना, सिर्फ शाह जी तो नहीं देते अपनी जेब से। नहीं तो जो नहीं देते हैं उसका बात क्यों नहीं करते हैं फिर प्रोग्राम में? तुम्हारा फर्ज है कि तुम सारे घरों की यकसा हिफाजत करो। देखो आज सारे घरों का मैं आपको बताता ये जो दूसरा गाड़ी चोरी हुई है हम भी मानते हैं हुई। वो आई है वो जो दुबई गया हुआ है वो मुझको नहीं पैसे देते। अच्छा। वो उनके घर मेहमान आया है उन्होंने बाहर गाड़ी खड़ी किया है वो मुझे अब नहीं पता है कि आया कौन है उधर गया कौन है। यार ऐसे तुम लगे हुए हो। अच्छा एक इल्जाम इन लोगों पे ये भी है, ये दौरे जदीद की मुसीबतें, कि ये हैंड फ्री लगा के ना सारी रात गाने सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और अगर कोई इनको आवाज दे पुकारे तो ये मुसीबत के वक्त उसकी मदद को नहीं पहुंच गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। गाने नहीं सुनती। हम शादाब खान झूठ नहीं बोलेगा बे, एक गाना नहीं सुनता है। मैं अपना पून में रहा है उसमें से मैं सिर्फ गाने नहीं सुनता है, सिर्फ एक गाना सुनता है। वो एक गाने का हम कहते हैं हम सुनता है। कौन सा गाना? वो दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोक जिंदगी के लिए। वो एक गाना एक दफा सुना है। झूठ नहीं बोलेगा शादाब खान, मर जाएगा मगर शादाब खान झूठ नहीं बोलेगा। एक उधर एक गाना सुना है उसके बाद चौकीदार करता है ड्यूटी। अल्लाह के फजल से मेरे जैसा अगर कोई देगा तो बेशक मुझे निकाल देना। सर एक इल्जाम इन पे ये भी है कि कुछ चौकीदार ऐसे भी हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि अगर चोरी डकैती की वारदात हुई है तो वो खोज जो है ना पहुंचते पहुंचते इन तक जरूर आई है कि वो इनसे मिले हुए होते हैं। वो पहाड़ी इलाके का चूई शादाब खान पे चोरी का इल्जाम लगाती है। और यार तुम पे नहीं लगा रहे, उसने वजाहत की है कि कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं। आराम नहीं कहते हम, अल्लाह के फजल से मेहनत करके कहती है। अभी 27 घर में से 22,000 इकट्ठे हुआ है, 5,000 का नुकसान उठाया है। हम आराम नहीं कहते हैं। ये चोरी जो करता है बदबख्त होता है। हम उस पर लानत बेचता है चोरी वाले पे। हम अपना मेहनत करके कहते हैं। ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये अच्छे रहे हो, ये देखो। वाह मेरा बात सुनो, मदारी की गिदड़ सिंगी वो चोरी वाला काम भी छोड़ दिया, सिर्फ चौकीदारा करती। अब मेरा छोटा भाई जो है वो चोरी तेज करता है। ਜਨਾਬ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो साइकिल पे नंबर प्लेट लगी हुई है। तुमको कैसे पता है साइकिल वही होता है? जो शाह जी ने हमको साइकिल लेके दिया वो हमारे पास होती है। अभी भी हम नीचे लेके आ जाओ, देख लो जाकर उसका पीछे पीला रस्सी लपेटा हुआ है। हम अल्लाह के फजल से जो काम करते हैं आप अफसर लोग हो, आपको हम बताती है ये तो फजूल आदमी बात करते चोरे के। मैं आपको बताता है साहब, मैंने अल्लाह के फजल से आज तक कभी ऐसा आराम काम नहीं किया है। जो करता हूँ वो अल्लाह के फजल से डंके की चोट पे करता हूँ। खुद मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इनके घर के सामने नहीं करना चौकीदार है। अगर शादाब खान को पैसे नहीं देगा तो फिर शादाब खान भी उधर नहीं चोरी अपने रोकेगा। सर जी सिर्फ इसे शाह जी की फिक्र है, मोहल्ले की कोई फिक्र नहीं है इसको। वह दुम्बा कड़ाई शाह जी को बात करेगा तो इधर लड़ाई होएगा। खान ये मुझे पकड़ा दो, कटहरे में वेपन पकड़ के नहीं खड़ा सकता मैं। अच्छा इन लोगों के जो वेपन होते हैं ना 90% नकारा होते हैं, इनका कभी असला चलता नहीं है। ये असला नहीं है तो ये कड़काने के लिए रखा हुआ है जोर से। वो जो पिस्तौल लेके दिया है शाह जी ने वो शाह जी के बेटे का होती थी, वो उन्होंने हमको दिया। वो कहती है शादाब खान चलाना नहीं है, तुम सिर्फ इसको हाथ में रखो रोब वास्ते। वो जब शाह जी का मेहमान आती है उस वक्त हमको पकड़ाती है दरवाजे के आगे खड़ा करने के लिए। चलो यार नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। खास तौर पे जो ये मैं ट्रैफिक की स्पीड की बात कर रहा हूँ ना, ये इंतहाई जरूरी है। क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, मोटरसाइकिलें दौड़ रही होती हैं शहरों के अंदर, रश के अंदर, वहां पे जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो बचने की उम्मीद ही नहीं होती। ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जान वालिया
यार बात ये नहीं, ये तो मैंने ये स्टार्ट लिया है। जुनैद यार बात ये है कि ये जो हादसात होते हैं ट्रैफिक के, हाँ जी, इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जाहिर है, हाँ जी, मगर मेरा ख्याल है मैं किसी वक्त घर बैठते सोचता हूँ ना कि मैं मुल्क और कौम की क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसने भाभी का नाम मुल्क कौम रखा हुआ है। यार फिर रहने देते हैं सीरियस सेगमेंट। अगर आपने चप्पे चप्पे पे कॉमेडी करनी है तो फिर रहने देते हैं सीरियस सेगमेंट। हाथ धो गई आपकी। अच्छा बताएं क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि किस तरह हम खूबसूरत नजर आए, तो उसमें मैंने सोचा कि हादसात भी जो होते हैं और ट्रैफिक भी जो हमारी बेहंगम सी हो रही होती है, इसमें मेरा ख्याल है हम स्पीड लिमिट कहीं भी इख्तियार नहीं करते। और शहर के अंदर मेरा ख्याल है, बाहर के ममालिक में ये देखा है कि स्पीड लिमिट बहुत ही ज्यादा सख्ती से फॉलो की जाती है। हमारे यहाँ उलट साहब है, हम सिर्फ हाईवे या मोटरवे पे स्पीड लिमिट देखते हैं, शहरों के अंदर तो है ही नहीं। हम नहीं देखते, वहां पे हमें दिखाने वाली कुव्वत मौजूद होती है, वो जो मोटरवे पुलिस है वो दिखाती है हमें, हम वहां पे भी नहीं देखते। वही अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शहरों के अंदर रिवाज ही नहीं है। और आप देखें कि शहर के अंदर अक्सर आपको 100 की स्पीड पे गाड़ियां या मोटरसाइकिलें जाती नजर आती हैं। बिल्कुल टू मच। अच्छा, जो बहुत बड़ा जुल्म है मेरा ख्याल। खतरनाक हादसात होते हैं ना, जो जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं, वो उन मतलब औकात में होते हैं जब ट्रैफिक का दबाव कम होता है और लोग ये समझ के पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं कि यार खाली सड़क है। अब खाली सड़क जा रही है, दूसरी सड़क वो भी यही समझ रहा है, इधर से आने वाला भी कि खाली सड़क है। मैं कहता हूं कि इस तरह दौड़ा रहे होते हैं गाड़ियां और ऐसी तेज जा रहे होते हैं जैसे किसी एंकर को बीवी ने नहीं आवाज मारी होती। नॉलेज में इजाफा हुआ जीजी। वैसे हमने तो यही सुना था कि एंकर लाइव जाने के लिए तेजी पकड़ता है। अच्छा सर, हालांकि चलान भी घर पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आते लोग। तुम भी बोलो, इसको ना बोलने दे। इशारे पे 2 मिनट के लिए रुकना पसंद नहीं करते। इशारे की बात नहीं हो रही, स्पीड की बात हो रही है। कैसे तुम पुट्ठे दानिशवार हो। अजीजी गोगे ने 2 मिनट का, छोड़ दें इसको। मिनट नहीं होता, मिनट होता है। मिनट नहीं कहते यार, गवर्नमेंट होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स है ना जी हर शहर के, उनको चाहिए कि शहरों की ट्रैफिक स्पीड मुतय्यन करें और उसके वहां बोर्ड लगवाएं। बिल्कुल। कई सड़कों पे सुना है जी यहाँ पे ये स्पीड है, लिखा कहीं भी नहीं हुआ, या एक बोर्ड लगा के तो वो जो एक किया हुआ है। 2-3 जगह अगर कहीं शहर में बोर्ड लगे भी हुए हैं तो उसके ऊपर जो है वो हाजमे की फक्की का पोस्टर लगा होता है, या फिर दरख्त के पत्ते आगे अजीजी भी अफसर है, अजीजी भी अफसर है। बड़ी देर से अजीजी तुम कह रहे हो कि गाड़ियां ध्यान से चलाओ, पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। सुनते नहीं है। मैं वैसे हूं ही होम्योपैथिक अफसर। मेरा अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई। मैं ये ट्रैफिक के डिपार्टमेंट है, उनको मैं ये प्रपोजल देना चाहता हूं कि स्पीड लिमिट मुतय्यन करें हर सड़क की, और उस पे अगर आपके पास बजट नहीं है बोर्ड लगवाने का तो आप किसी भी कंपनी से कहें वो छोटा सा नीचे अपना नाम लिख लें, ऊपर वो ट्रैफिक की स्पीड लिमिट लिख दे। और कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर के बाद वो बोर्ड लगा होना चाहिए। बार बार बोर्ड लगे होते हैं, थोड़े फासलों पे बाहर के मुल्कों में बोर्ड लगे होते हैं ताकि लोगों को याद कराया जाए बार बार कि भाई ये लिमिट है, ये स्पीड लिमिट है, ज्यादा तेज ना चलाओ। अजीजी, ये सेफ सिटी वालों ने जो कैमरे लगाए थे वो स्पीड पे बकायदा चलान भी करते थे, अब वो भी भूल भुला गए। हाँ जी, सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे 4 को दिन जोश चढ़ता है इनको। कोई ट्रैफिक चीफ ऐसा आ जाए कि बेल्ट के ऊपर सीट बेल्ट बांधे, उसको वो स्यापा पड़ जाता है। किसी को दौरा पड़ता है एकदम अपना हेलमेट का, किसी को एकदम दौरा पड़ जाता है स्पीड का। ये तो असूल जो है ये हर वक्त पूरा साल किसी भी ऑफिसर के होते हुए होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के बदलने से असूल नहीं बदल जाने चाहिए। और ये खास तौर पे जो ये मैं ट्रैफिक की स्पीड की बात कर रहा हूं ना, ये इंतहाई जरूरी है। क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, मोटरसाइकिलें दौड़ रही होती हैं शहरों के अंदर, रश के अंदर, वहां पे जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो बचने की उम्मीद ही नहीं होती, ज्यादा नुकसान होता है और लोग बड़े सख्त खौफजदा होते हैं। जो चंद शुरफा
लिमिट में रहना चाह रहे होते हैं, हद के अंदर रह के गाड़ी चला रहे होते हैं, वो बेचारे बकायदा इस तरह के शोखों से खौफजदा होते हैं। बिल्कुल सही। अजीजी को बात करना चाह रहा है जुल्फी, दबाओ इसका कमर दबाओ। इसकी बात रह जाए ना कोई तो फिर मेरे साथ रोता है, ये पता नहीं क्या बात है। अजीजी, ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे इतनी स्पीड से बाइक चलाते हैं कि देखने वाले को डर लगता है। वो जो स्पीड लिमिट है ना जी, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए एक होती है और वो हर वक्त होनी चाहिए। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये बड़ा जरूरी है। आप जरा बाहर के जो जहां पे खूबसूरत ट्रैफिक निजाम है वहां के असूलों को झांकें तो आपको पता चलेगा कि ये स्पीड लिमिट है बहुत जरूरी है। शहरों के अंदर और ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि मेरा अपना ख्याल है शायद ऐसा ही हो बार भी जी जी। जो ओवर स्पीडिंग है ना जी, ये शहर के अंदर तो इसका डबल फाइन होना चाहिए ताकि ज्यादा खौफ हो और यहाँ शहरों के अंदर आबादी के अंदर लोग जो हैं वो ओवर स्पीड ना जाए, कंट्रोल करें। फिर एक दिन पहले भी हमने बात की थी कि ये जो ओवरहेड ब्रिज है या नीचे से जो अंडरपास बनाए गए हैं पैदल लोगों के लिए, खुदा वास्ते उसकी तरफ भी ध्यान दें। ये ट्रैफिक पुलिस के अंडर करें, उनको उनके सुपुर्द करें या बल्दिया के सुपुर्द करें, कारपोरेशनों के सुपुर्द करें, वो इनको देखें। बल्कि मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहता हूं कि गुजरांवाला में एक ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है लोहे का, यार वो सारा टूट गया हुआ है, वो किसी दिन बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा लोगों के लिए। उसको देखें। ये लाहौर शहर के अंदर इतने सारे ओवरहेड ब्रिज बने हुए हैं, उनको फाल रखने के लिए उनकी सफाई सुथराई, वहां पे नशइयों के डेरे उठाने चाहिए, वहां पे जो दुकानदार बैठ जाते हैं सौदा बेचने वाले, उनको परे हटाएं, उसको रास्ते को क्लियर रखें और वहां से खौफ खत्म करें। पैदल जो गुजरने वाले हैं वो खौफजदा होकर वहां से गुजरते ही नहीं। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप थोड़ा सा सख्ती से फॉलो करें तो आपका सारा निजाम खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। आपका सिर्फ निजाम ही खूबसूरत नहीं होता, आवाम का डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन कहते हैं ना इंग्लिश में, वो कम होता है। ईमान से लोग सुकून फील करते हैं। और जिस तरह के हालात ट्रैफिक के, इससे तो घर जाने तक इतनी टेंशन हो जाती है कि यार ये किस तरह गुजर के किस तरह से इस्लामत कार पहुंच गए। इतनी खौफनाक ट्रैफिक होती है। कई बार जिक्र किया है कि बड़े बड़े साइज के जो ऊंचे ट्रॉलर होते हैं वो अंडरपास से गुजरने की कोशिश करते हैं, साइडों पे बैरियर्स नहीं लगे होते और वो फंस जाते हैं और कई कई दिन वो बेड़ा गर्क किए रखते हैं ट्रैफिक का। अभी कितनी दफा हमने जिक्र किया, अभी ईद से 2 दिन पहले मैंने देखा कि वहां पे फिर ट्रैफिक फंसी हुई थी, तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैं कहा फिर कोई ट्रॉलर फंस गया? कहते नहीं जी, आई तो गोगा फंसे हैं। यानी कि एक लाफ्टर लेने के लिए इसने 1.5 मिनट ही आया। सही बात है। इस तरह हमें खींच के ले गया सीरियस फन की तरफ। मैंने समझा पता नहीं ईद वाले दिन भी ट्रॉला फंस गया। और ये जो तूड़ी वाली ट्रालियां ट्रक होते जो गोगा तो बेचारा नैयर ही ना आए उसमें गिरा हुआ, इतने चौड़े, वो उन्होंने पूरी सड़क रोकी होती है किसी भी गांव की या इस साइड पे जो वो जा रहे, शहरों में भी वो घुस आते हैं। जी जी, उन पे पाबंदी लगाए खुदा के वास्ते। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह आपने जिक्र किया था, किसी पुलिस ऑफिसर ने अपने जिले में ये जो बड़े बैरी जहाज बने होते हैं तूड़ी वाले, वो कहीं भी नजर आता था तो उन्होंने हुक्म किया हुआ था कि उसको लीक कर दे, सारी तूड़ी निकाल दे, सड़क पे निकाल दे, ताकि आइंदा कोई इस तरह तूड़ी भर के वो ट्रक के साइडों से 4-4 फुट बाहर निकला हुआ ट्रक बना के ना सड़क पे चढ़े। थोड़ी सी अगर आप सख्ती करें, सजाएं इस तरह की दें कि लोग खौफजदा हों, लोग डरें, वो ट्रैफिक को फॉलो। देखो बाहर लोग जो हैं वो हमसे ज्यादा शोखे हैं, हमारी कौम से ज्यादा बेहंगम लोग रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए तरतीब में जा रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं कवानीन को कि वहां पे सजाएं बड़ी सख्त है। वहां पे तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाए तो आप फिर गाड़ी चलाते हुए कहीं नजर आ जाए तो वो साल कैद कर देते हैं कई यूरोपियन कंट्री में। तो हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का तस्वुर ही नहीं। जी नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल और आज की छोटी सी बात ये कि मतलब बहुत वजनी होता है, निकल जाए तो अच्छे से अच्छा ताल्लुक भी बेवजन हो जाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।